Okay. So we needed to do testing for bank reconciliation. Before that, I just want to check one thing regarding that last configuration step. Did we update or not? So let's go. In this is the first step and this is the last step also. Because in first step, we create business Can you, transaction. Because you were saying something? Okay, so we have no, already there is a assigned the. lag from my side. Okay. Uh, lag from my side, but proceed करिए please. ठीक है. So this is the first step where we create the business transaction, and this is the last step. We assign posting rule. So we have assigned posting rule, and now here we can do how we want to clear the document. So first entry would be incoming or outgoing. Second entry would be transferring incoming or outgoing to main account. So first entry we want to clear. How we want to clear? So for that we can select how we are going to search the document, document. So that we are going to take document number. So it is a very standard. So mostly we take in document number or invoice number. So let's take document number because document number is always unique. It cannot be same. Yes, now here also. Here we mark plus, I believe. Let me read it this one. This is we can ignore it this also. No issue. But if you want, you can mark it as plus also because I think I have done it for one company code also. But it is just to remember. Nothing more than that we need to do. Okay, now our configuration is complete. Now we will start how to do bank reconciliation. And before that, we need to do payment posting. Let's check, do we have any invoice available? For that, what we need to do? What is the report we can check for open invoice for vendor? Bill one and April 1. And now I was telling to Sagar that because of sequence we missed, we could not complete AR. So in now we do not have anything open in incoming. We can do payment posting for vendor, but we cannot do any payment received from customer because we have not configured as of now account receivable. So now in BRS, you will be only able to test outgoing payment because this is vendor report. We have, let me enter the company code. In our company code, we have three vendors, we have posting, so we can do testing with BRS. But so we have so many so many invoices. Now we will make a payment. But if we check AR report, FBL5N for this company code, nothing is there because we have not configured AR as of now. So that is why in BRS, we will be able to only test outgoing payment. We will not be able to test incoming payment because configuration is not done because we miss this sequence. Understood? That is why I always prefer to go in a sequence which I have designed. Now, instead of two test, right, sir. instead of two testing, we will be able to do only one testing. That is fine because you will be able to understand the concept. Same thing you need to do for the incoming also. But if we will miss this sequence, then definitely we will be missing so many scenarios also. In this, it is not the big thing because whatever process we are going to do for outgoing, same process you will be doing for the incoming also. You will be able to understand. But in future, try not to miss the sequence. Okay, so let's go back to payment, vendor invoice. So, and I have open invoices. Suppose which one I take. Suppose, or I do one thing, I post new invoice so that you can understand what process we have for the VRS. So firstly, we will be doing the FB60. This is my company code, 300.
So 9,000 I'm taking. So now who will help me to resolve this issue? We are getting some issue. Now going forward, whatever issue we will get it, I will take your help, which we have already done it. Now help me with resolving this issue. सर फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, राइट? फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया सर। हाँ चेंज हो गया तो बताओ ना कैसे ठीक करें इसको, वो तो मुझे तो पता है जाएंगे चेंज ना हो गया वहाँ पे उसमें जाएंगे ना सर, पोस्टिंग पीरियड में जाएंगे, वहाँ पर जाके नया बनाना पड़ेगा ना सर 25-26 के लिए हमें। बताओ कैसे करें? कौन सा कोड था? OB52 is the T code, variant होगा 001, हमने जो अपनी कंपनी को फिर बनाया होगा। अब बताइए। हाँ सर। We do the exactly same thing for 2025. Even like 2025. चलो मैं थोड़ा यहाँ पे लेता हूँ। फर्स्ट 2025 फर्स्ट 2025, ठीक है, ये तो प्लस के लिए हो गया। अब हम वेंडर की पोस्टिंग कर रहे हैं तो ये भी होना चाहिए, ये भी होगा। हाँ 12। अब इसमें GL भी यूज होगा तो इसको भी होना चाहिए, तो GL की पोस्टिंग भी तो होगी ना। ये GL सर इसको अगर 1 to 12 कर देंगे तो फिर तो हमारे पूरे खुल जाएंगे ना उसके लिए। पूरे खुल जाएंगे, मतलब वैसे ही करना चाहिए टेस्टिंग में, बट मैं इसलिए नहीं करता बिकॉज ये इशू कम से कम 10-15 बार आएगा तो आपको समझ आ जाएगा ये फुल टॉपिक। ठीक है, अब आपको समझ आ चुका है तो अब हम कर सकते हैं, बट आपके अपने सिस्टम पे भी जब आएगा तो आपको पता होगा कैसे करना है। मैंने तो एक्चुअली 25 पे वो 12 ही कर रखा है, आता ही नहीं है। हाँ नहीं भाई वो आएगा नहीं, वो तो ठीक है, बट मैं अपने प्रैक्टिस में कभी नहीं करता शुरू में, बिकॉज 4-5 बार लोगों को दिख जाए तो वो एरर इजी टू रिमेम्बर हो जाता है। बट सर वो वाला जो टॉपिक मैंने आपसे पूछा था वो आप कब कराओगे, क्योंकि ना वो बहुत ज्यादा, मैंने एक नई कंपनी क्रिएट करी है फिर मैं आके वहीं रुक गया हूँ। तो मुझे तो ना वो मैं भी रिजोल्व करूंगा, क्योंकि मैं आपको करा दूंगा आपके कई सारे टॉप, मतलब वो आप रिजोल्व तो कर लोगे बट क्यों कर रहे हो कैसे कर रहे हो उसको समझ नहीं आएगा। नहीं मैं अंदर तक तो घुस गया था बट कहीं ना जाके कहीं रुक ही रहा हूँ। समझ नहीं आता, वो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है सर वो। हाँ एक ही ट्रांजैक्शन कोड में बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है वो। ओके के पी की बात करोगे सर आप? एक बार डिस्कशन करेंगे नहीं। क्या है सर? एक ना जब कंपनी कोड बनाते हैं ना S/4HANA में एक इशू आता है यूनिवर्सल जनरल लेजर का। जब भी नई कंपनी कोड बनाओगे S/4HANA में, उसके लिए क्या होता है, ये वाला ट्रांजैक्शन कोड होता है, इसके अंदर हमें जाके ना कुछ सेटिंग करनी होती है। तो मैं जब भी कराता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि जब भी किसी को इशू आए तो गिव इट टू मी, आई विल रिजोल्व इट, बिकॉज मतलब ये आप स्किप टॉपिक तो नहीं करोगे ना, बताओगे ना सर? मतलब मैं ये कह रहा हूँ सर, नहीं बताएंगे बिना स्किप करे, क्योंकि क्योंकि एक्चुअली मैंने ना सर एक चीज और बताना, जैसे मेरे जो अभी हमारे कंटिन्यूएशन कंपनीज में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो क्लाउड पे सर, क्या क्या ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करके मिलता है डाटाबेस क्या वो? नहीं सारी कॉन्फ़िगरेशन क्लाउड का ही मेरे को, मैंने एक सिस्टम पे काम नहीं किया जो मुझे भी सुनने में आ रहा है, हाँ बट सर मैंने उससे पूछा था। नहीं, बट मुझे जो लगता है जब तक आप बिजनेस के डिस्कशन नहीं करोगे आपको पता क्या चलेगा उसको रेंज क्या चाहिए, GL कौन से तो चाहिए। वही चक्कर है सर, मैंने उससे यही पूछा, मैंने कहा जब तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन करके मिलता है तो कोई फिर फायदा नहीं, क्योंकि उसको भी मैंने काफी देर बिठाया था। कॉन्फ़िगरेशन करके मिल जाता होगा, बट डिस्कशन करने के बाद आप उसको मैनिपुलेट करोगे, चेंज करोगे बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बिकॉज जैसे हमने GL नंबर बनाए 6 डिजिट के, बिजनेस क्या करने, मैं मुझे 6 समझ के नहीं गया, चाहिए 7 के चाहिए, तो आप 7 उसको के 7 चाहिए, के 10 तक करोगे, क्लाउड है मतलब ना सर। हाँ कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है बट हम्म। बहुत ही बेसिक चीजों की मिल जाएगी, सबकी नहीं मिलेगी। क्योंकि सर मैंने उसको बैठाया क्योंकि उसके पास 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी वो कर रहा है तो वो भी नहीं रिजोल्व कर पाया। क्या ये वाला? अब वही वाला जो मैंने आपसे पूछा है, ये मैं वाला काफी अंदर तक तो चला गया। हाँ अब सर वही वो ये वाला टी कोड है, ओके की पी, ये जो आप तो बोल रहे हो वो नहीं है, ये वाला टी वो कोड नहीं है है सर। इसकी, नहीं इसकी वजह से आता है, इस वाले टी कोड की वजह से, अगर आपको R&D करनी है ना, बट सर R&D बता दो करना ना। नहीं, मैं नहीं भी नहीं R&D बता करूंगा पाऊंगा। सर मैं। हाँ मैं ये टी कोड आपको यहाँ से आप नोट कर लो, ये वाला है। ठीक है सर मैंने कर लिया, यही हाँ वाला है ना सर? हाँ, इस टी सर कोड में गया तो जाके मैं इसमें भी था बट मेरे को समझ नहीं आया, गया ये तो आएगी इसमें भी नहीं ना, था। तभी तो आपके जो बंदा 2 प्रोजेक्ट कर रहा है उसको भी समझ नहीं आया, हाँ क्योंकि वो ये तो इतना सर हाथ ही ईजी खड़ा नहीं कर है। देता कोई। तो सर एक चीज बताओ, ये क्यूरियोसिटी मतलब ये प्रॉब्लम सब में ही रहती है क्या? मतलब किसी से कुछ S/4HANA सिस्टम पूछने है। जाओ तो बताता नहीं है। नहीं नहीं, जैसे मैं अभी आप कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई आपका कलीग आपसे कुछ पूछना चाहे तो आप मतलब हमारी कंपनी में तो ऐसा होता है कि कुछ बताने ऐसा लगता है जैसे हम कुछ पूछ लिया उनसे, ऐसा कुछ बता के राजी नहीं होते। तो कंपनी में नहीं बताता कोई बंदा, कोई नहीं कहेगा कि मेरी नॉलेज सामने वाले के पास जाए
जब कोई इशू आए तो वो इसको सोल्व कर दे, उसके नंबर बन जाए। इसी को तो हाँ, वो पॉलिटिक्स ये कहते गलत हो हैं। रहा है सर। हम आप तो भी नहीं यही करते करोगे, सर ऐसा। आप भी यही करोगे। नहीं, मैं नहीं करता, सर मेरे आप को तो भी जो यही आता है बता करोगे, देता हूँ। आप भी यही करोगे, देख लेना। ह्यूमन माइंड है, सब यही करेंगे। आप थोड़ा मैंने ज्यादा कहा भाई करोगे या कम करोगे वो हो सकता है, और डिपेंड करता है सामने वाले के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसे है, और सामने वही वाले है को ना साथ सर, आपको लगता है कि क्या बेनिफिट मुझे मिल सकता है। हर कोई ऐसे ही करता है। अरे मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं बताना, बता, मना कर दे सीधा, टाइम मत खराब कर अपना भी मेरा भी। सर आप में ही एटीट्यूड आ गया, सामने वाले ने जिसने नॉलेज लिया उसने भी तो इतने एफर्ट लगाए होंगे ना। उसने आप जो एफर्ट लगा रहे हो उसने भी लगाए होंगे कहीं ना कहीं। उसने भी कहीं ना कहीं से ये सुना होगा कि हाँ मैं बताता हूँ, अभी नहीं बता रहा। फिर उसने कहीं से पढ़ा होगा, फिर उसने कहीं जाके पैसे दिए होंगे, फिर भी समय नहीं आया होगा। तो उसने भी वो जर्नी में होके आया जो आप कर रहे हो अभी। सबको यही लगता है। मेरे पास अभी एक मैं कंट्री का कर रहा हूँ, ग्रीस कंट्री का इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, मुझे नहीं आता वो। मैं 50 लोगों से बात कर चुका हूँ, कोई बता दो। तो मैं अभी ये क्या कह रहा हूँ कि कोई बता देगा तो किसी का क्या चला जाएगा। और जब मुझे आ जाएगा तो मुझे भी यही होगा कि मैंने इसमें पापड़ बेले हैं। तो मैं बताऊंगा, चलो वो भी सर। उनको बताऊंगा जिनके साथ मेरे रिलेशन है, और जिनको मुझे लगता है कि यार ये बंदा सही है, इसको हेल्प करनी चाहिए। जो एटीट्यूड दिखाएगा तो उसमें कभी नहीं बताता। तो ये सबके साथ, आपके साथ चलो भी चलो, होगा। पर ये नहीं ट्रांजैक्शन कोड हमारे अगर साथ आपको तो आरएनडी करनी है ना, कहीं और मत ठीक है करो, सर। खाली इस ट्रांजैक्शन कोड की आरएनडी करो। नहीं सर, अब तो मैं करके देख लूंगा आज ही, हाँ आपको अपडेट भी हाँ कर दूंगा अगर हो गया तो। हाँ। अच्छा ठीक है, हम क्या कर रहे आगे थे। करता BRS पे। ओपन हमने कर दिया था पीरियड। ठीक है। अच्छा अब बताओ, नेक्स्ट इश्यू आया है, अब इसको कैसे रिजोल्व करें। वो वाले सर ट्रांजैक्शन नंबर कोड रेंज का में भी बहुत। जाना पड़ेगा। और OBS हाँ, 7। OBS 7 में जाएंगे, या फिर डायरेक्ट नंबर रेंज का टी कोड होता है FBN1। SBN1, हाँ। यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेंगे ना सर 25 के लिए। हाँ हाँ। कॉपी कर लेते हैं ना इसको पूरा ही, Exactly 25 के something. लिए बना देते हैं इसके लिए, क्योंकि 25-26 का फाइनेंशियल चेंज हो गया ना हमारा अब। सर जो यहाँ पे एक कॉपी का जो ऑप्शन आता है ना, कि हम उसके कंपनी टू कंपनी का कॉपी करके और पेस्ट कर देते हैं इसको। वो एक नया टी कोड है, उससे थ्रू होता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मतलब मैं ठीक भी है। ना अभी शुरू से दोबारा से R&D कर रहा हूँ, तो नई नई चीजें दिख रही हैं। हम्म। ठीक है, 25 का भी हो गया कंप्लीट। ठीक है अब। सर ये फैक्स इसको मार दो। ठीक है, अब हम पोस्टिंग कर रहे हैं 9,000 रुपीज की इस वाले वेंडर में अभी तक। ठीक है, पोस्ट करते हैं। पहले तो बिल रोलिंग टैक्स हटा देते हैं। Someone is waiting. Yasir. क्या कह रहे हैं? आपकी In the आवाज lobby. थोड़ी ना आज क्लियर नहीं आ रही है। Yasir. Can you hear me, एक sir? सेकंड। हाँ हाँ हाँ। अच्छा कोई है लॉबी में आपके अंदर? Yasir. हाँ 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 Yasir हाँ उनका भी है. हाँ हाँ, मैंने भेजा था। ठीक है ठीक है, यहाँ से भी ऑल्सो भेज। अच्छा तो अभी हम एक पोस्टिंग कर रहे हैं यहाँ से BRS करने से पहले, और BRS करने से पहले पोस्टिंग करते हुए जो छोटे मोटे इश्यूज आ रहे हैं वो हम रिजोल्व कर रहे थे। नाउ वी आर एबल टू पोस्ट इट। एंड यासिर यू अंडरस्टैंड हिंदी ऑल्सो? यासिर कैन यू कंफर्म? अच्छा चलो, वी विल बी यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस। ओके, so we posted one document in 2025 for this company code, and this is the document number. Now we have posted the vendor invoice. Now we will making the payment to this vendor with 9,000. For that we will be using the transaction. Who will tell me? Tell me what transaction code we need to use. Sagar, Surinder, Santosh ji. Which one, sir? What is the question? So What is the for question, sir? for this invoice we need to make a payment to vendor. What is the transaction code we need to use to make the payment to vendor? FS53. FDS53. Now we can use FDS53. Can we use FDS02 also? Come again, sir. Your voice is breaking. Can we use FDS02 transaction code also for making the payment to vendor? We can do that. We can do any transaction there.
What is the difference any posting between what is the difference between FTP3? See, FTP02 you have to manually put the posting keys, but FTP53 it will take automatically. The credit, Right. the debit line item will come automatically to the vendor, and the bank will come as a credit line item. What And other also, Hmm. also it will automatically clear the KR Right. document. That is what I was looking for. That in FDAS02, you will be making the payment, but invoice will not be cleared. But if you are using F-53, F-53 will clear the invoice also against which we are making the payment. Correct. Let's use F-53. Okay, before that, we need to decide which bank we need to use because we are going to do the bank reconciliation. Let's go. Outgoing payment. Yeah, but first of all, we need to decide the account ID, account number. Let's see what configuration we have done for which account ID. There is no specific configuration for account ID in BRS, but I'm just checking so that we will be using the correct GL number for making the payment. Okay, so let's go to check. Press level 0. वहाँ पे था सर, वहाँ पे था। नहीं, बैंक का तो कुछ डेटा नहीं होता वहाँ पे, बस वहाँ पे हम प्लस 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 मास्किंग करते हैं। बस ठीक है, अभी हम अच्छा हमारे पास ये वाले बैंक है, हम इसको लें। ठीक है, तो हमारे पास इनकमिंग, आउटगोइंग एंड मेन ये वाले हैं, या फिर मेन, इनकमिंग, आउटगोइंग। तो हम पहला फर्स्ट वाला ले लेते हैं, हमें पेमेंट करनी है इससे करते हैं, आउटगोइंग फ्रॉम 999987 अकाउंट से। ठीक है, अमाउंट मुझे नहीं पता कितना करना है, देन आई एम टेक एज ऑफ नाउ आई एम टेकिंग 1. I will enter star. After that, then system will take automatically the amount from the debit line items. What is my vendor number? 3, ending with 1. And now I have a document number also. So I'm filtering for which I want to make the payment. My document number is 1000. Now process open item. It will show you only that document which you want to make the payment. Here we are going to make a payment of 9000, but I enter the bank line item 1 rupee. So difference is too large. So we cannot do anything. So what we can do, click on this document overview, double click on the bank line item and enter star. It will take automatically the image. And now simulate, again simulate. Now you can check the entry. If you see entry is correct, then you can post it. So vendor is receiving the payment, debit. My bank is making the payment of 9000. So now post it. So now in this vendor line document, vendor line item will be cleared because we have used the transaction code F-53 for making the payment to vendor. As of now, you will see nothing is there in the clearing document number or clearing date because it is not refreshed. So now let me run the transaction code again. Now double click on the vendor line item. You have now clearing document number. So my invoice is cleared. We have made the payment. Clear? Yes, no, Yes, sir. maybe. Yes, sir. Now we will check Yes, sir. our outgoing bank GL. So this is my outgoing bank GL. Here I have that 9000 open because we have made the payment. We have cleared the vendor line item, but my bank line item is open because now we will be doing the bank reconciliation. Okay, so now I will start my bank reconciliation. Before that, I run the transaction code FF67. Sir, एक काम Okay. करें, sir, one question. We have given the masking pair, right? We have given the 012 masking pair. So let's put two transactions. One using account अभी number करेंगे. 9. जी, okay. अभी करेंगे. Let's do only one transaction as of now, just to understand how system works. फिर उसके बाद 2 transaction post करके we will do with both.
परफेक्ट बट आपको एक चीज समझ आ जाएगा कि कोई इशू नहीं होगा, बट नहीं आएगा वी विल डू द सेकंड वन आल्सो। जी सर सर। ठीक है, सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन कोड इज FF67 फॉर BRS। तो यहाँ पे कंपनी कोड, नाउ वी नीड टू सेलेक्ट आवर हाउस बैंक। व्हाट इज आवर हाउस बैंक? ब्रांच 1, सेक्टर 1। Account ID, let's see, no value. We did not create any account ID. This one I believe. Okay, maybe we bank key name something different. So that is when we may face issue, because if we are not selecting the right house bank, but it could be only description, because account number we use for the GL, let's see, FDL3N, this one. So it is with 999987. So it is Sector 1. 9999. Okay, so house bank is 1. Now this is my first statement. Statement date, you can take today's date. Okay. Now my opening balance, just assume you already have a balance in the account, or you can say opening balance is 0. And now ending balance cannot be now minus. Initially we should have some balance in the opening, because we only, and that is why this is the consequence of missing the sequence. If we have incoming, if we have AR topic already configured, then firstly we have received the payment of suppose 50,000, and then we will make a payment of 9,000. Suppose opening balance is 50,000 in our account, and after making the 9,000, it will be 51,000. Okay. Sir, question. जो बिगनिंग बैलेंस 50,000 दे रहे हैं, लेकिन वी डोंट हैव एनीथिंग इन द बिगनिंग बैलेंस, राइट? नेदर वी हैव एनी रिसीविंग नॉर वी हैव एनी ओपनिंग बैलेंस। अगर यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस वी आर सेइंग कि हमने बैंक में पहले ओपनिंग बैलेंस 50,000 रुपये रखा हुआ था, रिसीविंग कुछ भी नहीं हुआ। हाँ सर, मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे अगर 50,000 अपडेट कर रहे हैं, क्या सिस्टम ऑटोमेटिकली ओपनिंग बैलेंस एंट्री वहाँ पे क्रिएट करेगा बैंक अकाउंट जीएल में? मतलब नहीं, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री 50,000 नहीं करेगा, वो आपको एंट्री डालनी पड़ेगी वहाँ पे कि ओपनिंग बैलेंस की मेरी एंट्री। ओके, लेट्स सी। तभी रिसीविंग वाला होता तो आपको ज्यादा समझ आता कि हमने एआर से रिसीव किया 50,000 रुपये और एपी से हम 9,000 रुपये भेजे। ठीक है सर, आप वहाँ पे 50,000 की एंट्री डाल लो मेन में, वहाँ पे आपको ओपनिंग आ जाएगा 50,000। ठीक है, लेकिन मैनुअली डालना पड़ेगा। मैनुअली डालना पड़ेगा, देखो ये खाली आप अमाउंट बता रहे हो, कोई एंट्री नहीं कर रहे हो यहाँ पे। एंट्री हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ओके, ठीक है, एंटर, दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, नाउ वंस यू एंटर दिस स्क्रीन विल पॉप अप। Now you need to select the business transaction, which is my first configuration step in my BRL. So for that, now we need to use ZZ0O outgoing, because we are going to reconcile my 9,000 rupees, which is outgoing payment. What is my value date? Let's see today's date. What is value date, sir? Is it transaction date or posting date? It is different in different area. So in asset, value date would be different. In banking, value date would be different. The entered value date is used to find the item on specific customer, vendor or GL account that is to be cleared with payment. So we cleared the payment on 25th. The value date can be used to select one or more item only when stated together with specific account. Merely, it is not that like important, but you need to enter the date for which you have made the payment also. So we have made the payment today, you can enter that date. It is not going to check anything for that. Mainly system will check this amount and this document number. Now amount is 9,000. We made the payment of 9,000. Now document number. What is the document number for my payment? This is my document number. This is my 9,000 in this bank account. This is document date for this. Document date is 26/4. Okay, so we today is 26. हमारे पास तो मल्टीपल आउटगोइंग पेमेंट इनकमिंग से रहेगा, राइट? सो क्या सबके लिए मैन्युअली हम अपडेट करना पड़ेगा अमाउंट प्लस डॉक्यूमेंट नंबर? नहीं, ये देखो, अगर आप पहले जब समझोगे तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा।
सेकंड स्टेप होगा, अगर आप चाहते हो मैं थोड़ा अपना काम इजी कर लूँ, तो आपको पता है मेरा फॉर्मेट ये है, तो आप क्या करोगे वहां से जाके कॉपी करके एक्सेल में डाल के पेस्ट कर लो इधर। जैसे कि पहला आपका 0 है, तो आपने यहाँ पे डेट डाल दी, यहाँ पे सपोज 8,000 का अमाउंट है और डॉक्यूमेंट नंबर है, फिर यहाँ पे डेट है, ऐसे करके आपने 10 लाइन आइटम बना दी। थोड़ा बहुत तो यहाँ पे आपको मैनुअल काम करना ही पड़ेगा, मैनुअल काम तो यहाँ एक्सेल में तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप ऐसे डाल लो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट, या एक्सेल करने के बाद सेव करो और एक अपलोड प्रोग्राम बनेगा। अपलोड प्रोग्राम ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ डाल देगा पहली स्क्रीन से लेके। तो मैं इसके बाद आपको समझाता हूँ कैसे, बट कर नहीं पाएंगे हम, बिकॉज हमें उसके लिए टेक्निकल कंसल्टेंट चाहिए। क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, कैसे डिस्कशन करोगे आप, वो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। ठीक है, अभी लेकिन अभी सर आपने एपीएल 3 में जाके उनको जी आपकी आवाज़ कट गई, वी कैन अपलोड राइट। एक बार दोबारा बताना, आपकी आवाज़ कट गई थी। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, गो टू एपीएल 3N सो यू कैन हाँ फाइंड ऑल द लिस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस हियर। हाँ, सो या इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लो, देन कर यू लो। मेक दैट एक्सेल एंड देन यू पोस्ट देयर। आई मीन बट यू आपको अप उस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में एक्सेल को कन्वर्ट करना पड़ेगा, करना जिस फॉर्मेट पड़ेगा। में आपका ओके ये है, क्योंकि आपको कॉपी पेस्ट करना है, तो आपको इस फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। आप एक्सेल 3N से डेटा निकाल लो, जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको रख लो, इसका फॉर्मेट इस सीक्वेंस पे कर लो। उसके बट लिए ये सिस्टम, मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। एक्सेल मैनुअली ही सही करना पड़ेगा, चाहे मैनुअली इसको एंटर करो या FBL 3N को निकालो, उसको फॉर्मेटिंग ठीक करो, उसके बाद यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है या इस एक्सेल को डायरेक्टली अपलोड करना है। वो दो प्रोसेस है। एक प्रोसेस तो अंडरस्टूड ये सर। है कि पूरा इसको कॉपी करो, जितने लाइन आइटम है यहाँ पे पेस्ट कर दो। उसके बाद अगर और भी हैं तो ड्रॉप डाउन करो, उनको कॉपी करो पेस्ट करो। एक तो ये मैनुअली हो गया। दूसरा आप कह रहे हो मैं खाली एक्सेल बना के सेव कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पे एक्सेल को, मैं एक नया ट्रांजेक्शन कोड बनाऊंगा, उसको यूज करूंगा, उससे सेलेक्ट करूंगा एक्सेल। एक्सेल अपने आप ओपनिंग बैलेंस डालेगा, अपने आप क्लोजिंग बैलेंस डालेगा, अपने आप स्टेटमेंट नंबर सेलेक्ट करेगा, अपने आप यहाँ पे सारी चीज डालेगा, एंड BRS पोस्ट भी अपने आप करेगा। वो ऑटो, उसको हम कहते हैं ऑटोमेशन। ठीक है। क्या अब उसके लिए अब हम देख, कर सकते हैं या बेसिस कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगा? बेसिस कंसल्टेंट का कोई काम नहीं होता डेवलपमेंट में। फंक्शनली कंसल्टेंट को पता होना चाहिए क्या करना है हमें, उसको करवाना है फंक्शनल कंसल्टेंट को अबैप कंसल्टेंट से, क्योंकि कोडिंग ऐप कंसल्टेंट लिखेगा तुम्हारे लॉजिक के अकॉर्डिंग। ओके अबैप को कुछ नहीं पता क्या करना है, उसको पता भाई तुम जो मुझे बताओगे इंग्लिश में, उसको मैं टेक्निकल लैंग्वेज में सिस्टम के अंदर लिख दूंगा, बस। गॉट इट। बट ये सारा बिजनेस पहले आपको मैनुअली आना चाहिए। अगर मैनुअली नहीं आता तो आप किसी चीज़ की ऑटोमेशन नहीं करा पाओगे। सही बात है। ठीक है, अब मैं इसको एंटर करता हूँ, मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी है। ठीक है, अब एक एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? बिकॉज बैंक में मैं कह रहा हूँ 9,000 माइनस है, और जो मैं एंटर कर रहा हूँ वहां पे प्लस कर रहा हूँ, तो वो इसको मुझे माइनस करना है। आउटगोइंग को माइनस करूंगा तभी मेरा बैलेंस चेंज होगा ना, कम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये सब वार्निंग है, इनको एंटर एंटर करके इग्नोर कर सकते हो। अब देखो ये 9,000 माइनस, ये 9,000 माइनस, ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी आप सेव कर पाओगे। ये दोनों नाउ कहाँ से आया? एक तो एंटर हमने 9,000 की है, एक तो ये आया बैंक पीछे वाला है। ओपनिंग बैलेंस से। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस कितना था? ओके ओके एक ओके हमने यहाँ पे समझ डाला। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। समझ। सेव करने के बाद पोस्ट नहीं होगी, सेव करने के बाद ये दोनों डेटा सेव हो जाएगा, ये लाइन आइटम सेव हो जाएगी। सेव। अभी देखो नीचे क्या कर रहा है, स्टेटमेंट लिस्ट सेव। नाउ अगेन यू नीड टू क्लिक ऑन दिस बटन, नाउ सिस्टम विल पोस्ट द स्टेटमेंट। पहले क्या आ रहा था, सेव, अब आ रहा है पोस्ट। नाउ लेट्स पोस्ट इट। अब स्टेटमेंट पोस्ट हो गई है। अब यहाँ पे आपको ये स्क्रीन अगर समझनी है तो इससे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। देखो सिस्टम ने FB01 ट्रांजेक्शन कोड चलाया, नहीं चलाया। FB05 चलाया, चलाया। वो क्या ट्रांजेक्शन कोड होता है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। मैनुअली भी चला सकते हो उसको। उसमें बैंक लाइन आइटम को वो क्लियर कर देता है, मतलब उसमें आप क्लियर भी कर सकते हो लाइन आइटम को। उसने टोटल कितनी लाइन आइटम चलाई? एक, क्योंकि एक ही लाइन आइटम डाली है हमने। कितने की थी? 9,000। तो ठीक लग रहा है। यहाँ पे कोई एरर आया हमारे पास? नहीं। कोई पोस्टिंग हुई है? नो पोस्टिंग, यहाँ पे एक मतलब है। तो सब कुछ सही लग रहा है। अब देखते हैं, पहले BRS के ट्रांजेक्शन कोड में जाके देखते हैं। FF67 दोबारा चलाते हैं, FF67।
ओवरव्यू करते हैं। मेरा बैंक कौन सा था, यहाँ पे आके मेरा कंपनी कोड का है, मेरा ये मेरा कंपनी कोड है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरा बैंक की है। इसको डबल क्लिक करो। पहली स्टेटमेंट, स्टेटमेंट डेट हमने 25 ली थी, 26 लेनी चाहिए थी, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस क्या डाला था हमने, 50,000। क्लोजिंग डाला था 41,000, ठीक है। अब हम चलते हैं, पहले मैं इसको दिखाता हूँ जो आपका आउटगोइंग का जीएल था। इसमें मेरी ये वाली लाइन आइटम ओपन थी। अभी आपने क्लियर करी है, यस नो मे बी। हमने आउटगोइंग नहीं, अभी जीएल को क्लियर क्लियर नहीं किया, करी है सर, क्लियर हमने मैं अभी नहीं करी है, बट सिस्टम ने कर दी है जो आपने भी दिखाया था। सिस्टम ने कर दी है बिकॉज बीआरएस करी है हमने। अब मैं इसको रिफ्रेश हाँ, करता हूँ, तो यहाँ पे अब कुछ भी ओपन नहीं बचा। अब इसको हम ऑल आइटम में देखते हैं, ठीक है। अब ये मेरा क्लियर आइटम में आ जाएगा। देखो मेरी आउटगोइंग जीएल क्लियर होगी। ये मेरा डॉक्यूमेंट पेज है, ये रहा। इसको अगर हम देखेंगे, ये तो मेरा पेमेंट का डॉक्यूमेंट है वेंडर वाला। ये बीआरएस वाला नहीं है, बीआरएस वाला एसए है। एसए क्यों लिया इसने, बिकॉज हमने बीआरएस के टाइम पे एसए डाला था बैंक रिकंसिलिएशन कॉन्फ़िगरेशन में। अगर आप वहां पे कुछ और डालोगे तो सिस्टम विल टेक दैट डॉक्यूमेंट है। अब देखो इसका डॉक्यूमेंट देखो, 40 को डेबिट, ये मेरा आउटगोइंग डेबिट हो गया और मेरा मेन अकाउंट क्रेडिट हो गया ऑटोमेटिकली। आपने कहीं डेबिट नहीं बोला, कहीं क्रेडिट नहीं बोला, और आपने कहीं जीएल नंबर भी नहीं दिया। जीएल नंबर अपने आप ले लिया उसने मास्किंग से, बिकॉज आपने यूज किया था। कहाँ गया मेरे पास, अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे नहीं आ रहा। सेकंड, बिकॉज आपने लिया हाउस बैंक, हाउस बैंक के साथ आपने लिया अकाउंट आईडी। तो अकाउंट आईडी में मेरे पास मेन जीएल असाइन था, तो मेन जीएल तो उसे वहां मिल गया। उसको सेकंड एंट्री जब डालनी थी तो उसने मास्किंग जाके चेक करी कि मास्किंग आउटगोइंग के लिए क्या है, प्लस 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 जीरो। तो शुरू का जो नंबर था उसने मेन अकाउंट से उठा लिया, लास्ट का नंबर उसने मास्किंग से उठा लिया। तो उसने डेबिट क्रेडिट ऑटोमेटिकली एंट्री करके ये वाला जीएल, ये वाली लाइन आइटम क्लियर कर दी और ये वाली एंट्री इसमें डाल दी। देखो माइनस प्लस ये हो गई। अब हम मेन अकाउंट देखते हैं। मेन अकाउंट किससे है हमारा, वन से है। लेट्स सी। तो मेन अकाउंट हमारा है टू से, टू से डालते हैं यहाँ पे। तो ये मेरा जीएल जो है ओपन आइटम नहीं होता। नाउ टेल मी व्हाई दिस जीएल इज नॉट ओपन आइटम। अब आपको समझ आएगा। जो हम जीएल में ओपन आइटम कर रहे थे बैंक के लिए, दो जीएल नॉन ओपन आइटम, एक जीएल नॉन ओपन आइटम था, दो जीएल ओपन आइटम थे। नाउ टेल मी। सर आपने 3 बताए थे, एक तो रिटेन अर्निंग, एक अभी जो बैंक बैंकिंग का का मेन बताओ, अभी अकाउंट। खाली बैंकिंग का बताओ कि बैंकिंग में इनकमिंग आउटगोइंग और मेन जीएल में मेन जीएल को हमने हाँ, ओपन आइटम क्यों नहीं किया। क्योंकि सर इसमें ऑटोमेटिकली रिकंसाइल हो गया ना सर, करेक्ट, इसमें हम इसको फर्दर रिकंसाइल नहीं करना हमें। नहीं करेंगे। अब हाँ, हाँ, अब देखो यहाँ पे मेरे पास 9,000 की एंट्री आ गई और ये मेरा ओपन आइटम नहीं है, इसलिए यहाँ पे टिक आया है। नहीं तो रेड बॉल आता या फिर ग्रीन बॉक्स आता। और यहाँ पे संतोष जी 50,000 की एंट्री नहीं आई, बिकॉज हमने वहाँ पे खाली बताया था कि मेरा ओपनिंग इतना है, सॉरी ओपनिंग इतना है। अगर आपको बैलेंस चेक मैच करना है यहाँ पे 9,000 माइनस की जगह, तो हम क्या करेंगे, एक एंट्री डाल देते हैं। सपोज MP02 कर देता हूँ मैं, ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे हमारे पास अगर इनकमिंग का प्रोसेस होता तो हम पहले 50,000 की रिसीविंग करते। बैक टू कैश, हम लोग कैश कर हो जाएगी। हम कर रहे हैं 50,000 का कैश। इससे करेंगे, सपोज हम किसी चीज से देखते हैं किससे भी करेंगे, या मैं डायरेक्टली कैश बैंक करते हैं तो बैंक इंटरेस्ट डाल देते चाहिए, ठीक है। समझ में। ठीक है, अब देखते हैं people। अब आपका 41 मैच हो रहा है, रिकनसाइल हो गया आपका। तो ओपनिंग बैलेंस तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा कि भैया मैंने बैंक में अगर पैसे जमा किया था तो बैंक को कैश करो। उसके बाद जब एआर से प्रोसेस से रिसीव करोगे तो आपका रिकंसिलेशन होता रहेगा, एपी से सर अब करोगे तो अगली बार तो जब अगली बार रिकंसाइल करेंगे तो 41,000 मेरा ओपनिंग आ गया ना। 41,000 मेरा ओपनिंग आएगा। वो भी मैं आपको एक बार कर दिखाया था यहाँ पे। ठीक। जैसे ये मेरी एक स्टेटमेंट है। आपको हाँ जी।
या तो अंदर जाके याद करने के बाद यहाँ पे डालना है कि मेरी अब स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट नंबर अच्छा। क्या है। ये करने की जगह बैंक ओवरव्यू पे जाओ, इस पे डबल क्लिक करो अपनी कंपनी कोड पे, इसको सेलेक्ट करो और न्यू स्टेटमेंट करो, तो ओपनिंग ओके, बैलेंस तो अपने मैं आप आ क्या? जाएगा। दो ठीक है स्टेटमेंट अपने आप आ गया। स्टेटमेंट डेट आपको डिसाइड करनी है, सिस्टम ने करंट डेट ले ली है। अब सपोज मैं कहता हूँ कि अब मेरा ओपनिंग बैलेंस अभी भी मेरे पास आउटगोइंग ही है, तो मैं कह रहा हूँ सपोज मेरा ओपनिंग बैलेंस रह जाएगा 35,000, मैं 6,000 की और पेमेंट कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे 6,000 की एंट्री डालूंगा। अगर मेरे पास इनकमिंग का होता तो मैं रिसीव भी कर लेता, पर हमारे पास अभी एयर का प्रोसेस नहीं है तो हम यहाँ पे इनकमिंग नहीं कर सकते। तो ये है मेरा बीआरएस। अब मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके ये तो हमारे पास 1 2 4 5 ट्रांजेक्शन कोड हो तो आप मैनुअली डाल सकते हो, छोटी कंपनी के लिए ऐसे ही चलता है। जब बड़ी कंपनी में आ जाते हैं, थोड़ी सी बड़ी कंपनी, उससे भी बड़ी कंपनी में जाओगे तो और भी ऑटोमेशन चल रहा है। अब सपोज आप कह रहे हो कि यार मेरे को ये मैनुअली नहीं डालना, मेरे को 50 60 एंट्री आ जाती है, मैं या तो एक्सेल में ऐसे कॉपी कर बना लूंगा और मैं यहाँ पे जो आके पेस्ट कर दूंगा। अभी देखो कुछ हुआ नहीं ढंग से पेस्ट, फॉर्मेट सही नहीं था। यहाँ पे क्या डाला अमाउंट में, ये साथ में क्यों आ गया, एक सेकेंड। कभी अगर मैनुअली डालते हैं तो फिर आपको ये यहाँ से सेट करना चाहिए इसको। या मैं यहाँ पे इसको हाई कर देता हूँ, तो मेरे सारे अब जो है इनकमिंग के हैं। अमाउंट में नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों, जैसे जाना चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ पे वन बाय वहाँ वन। पे तो ये भी वहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स ले अगर रहा है। बट ये गलत है, चाहता है पुराने सिस्टम में मैंने किया है, इसी में जाता है, बट यहाँ पे नहीं जा रहा, या तो कुछ सेटिंग वेटिंग चेंज हुई होगी या करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं अभी एक्सेल की या उसकी, सपोज आपने ऐसे डाल दिया, ये तो एक प्रोसेस सेकंड हो गया कि आपको एक्सेल से कॉपी पेस्ट कर दिया आपने इकट्ठा सारा। तो ये तो सेम सेम तरीका है कि आपने यहाँ पे मैनुअली डाला या एक्सेल से डाला, बात तो एक ही है। बट आप इकट्ठे सब पे डाल के आपका डॉक्यूमेंट नंबर, सर ये ठीक है। इसलिए कॉपी तो नहीं हो रहा है, वो जो कोमा और वो डॉट लगाते हैं उसकी हो वजह सकता है, से? मैं कह रहा हूँ सेटिंग वेटिंग हो सकता है, तो मुझे लगा तो उसी रहता की है वजह से ज़्यादा, लगा यार, मुझे बट तो उसी एक्सेल की में वजह से लगा, एक बार कर देते हैं। क्योंकि मैंने भी किया था, हो रहा था, तो उसने बताया था कि ये कोमा नहीं लगा है इसलिए नहीं हो रहा, तो फिर मैंने लगाया तो हो गया था मेरा भी। अच्छा, इसका एक फॉर्मेट भी मेरे ख्याल से जो है हो गया ना, आज तो नहीं कुछ। डबल डबल आ गया। हाँ कुछ तो है सर। ठीक है, रहने दीजिए, वो पॉइंट वन कुछ लिख रहा हूँ। मुझे तो उसका डबल ये ले रहा है, डबल कॉलम्स। लेकिन सर एक बात पूछूं, हम्म, ये तो ये हम तो देखिए, बीआरएस क्या होता है कि हम बैंक रिकन्सिलिएशन के साथ हमारा जीएल को मैच करना है, बराबर। हम्म, But here we are transferring the accounts from amounts from or entries from the outgoing GL to the main bank account and from the incoming GL to the main bank account. मेन बैंक अकाउंट इज योर पासबुक। पासबुक, तो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं पासबुक को, राइट। लेकिन एक्चुअल बीआरएस क्या होगा कि हम जब मेन बैंक अकाउंट पासबुक से के लेके हम बैंक स्टेटमेंट के साथ हम जब कंपेयर करें, दैट इज एक्चुअल बीआरएस, राइट। बैंक स्टेटमेंट जब आपके हाथ में होगी तभी तो आप आउटगोइंग और इनकमिंग को ट्रांसफर करोगे, मेन नहीं।
जब तक आपके हाथ में बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आप ऑनलाइन जाके सपोज बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहे हो, आप कह रहे हो कि यार इसकी पेमेंट करी थी हमने, पहले आप सिस्टम में एंट्री डालते हो, पेमेंट करी आपने सिस्टम में एंट्री डालने का मतलब ये नहीं कि वेंडर को पेमेंट चली गई। अभी हमने यहाँ पे सिस्टम में एंट्री डाली है, तो किसी को बस पेमेंट थोड़ी ना गई है। यहाँ तो सिस्टम में एक होता है अकाउंटिंग, एक होती है बैंकिंग। एससीपी के अंदर पहले आपने करी अकाउंटिंग, मेरे को इसकी पेमेंट करनी बराबर। है, इसके लिए मैं पेमेंट कर रहा हूँ, ये हो गई मेरी अकाउंटिंग। अब फाइनल पेमेंट हुई या नहीं हुई, वो होती है बैंकिंग। जब आपकी फाइनल पेमेंट हो गई तो आपको इन्फॉर्मेशन मिली बैंक स्टेटमेंट में, हाँ, तभी तो हम इसको आउटगोइंग में रखते हैं, और मेन में नहीं लेके आते। जब तक आउटगोइंग में पड़ा है, इसका मतलब हमारे पास कंफर्मेशन अभी या तो आई नहीं है, या हमने मिस कर दी है, या पेमेंट नहीं हुई है। अगर आपको कंफर्मेशन आ गई कि स्टेटमेंट में चेक कर लिया, हाँ ये वाला पेमेंट मैंने इस वेंडर को किया था, ये हो गया, अब मैं इसको आउटगोइंग से उठा के मैं मेन में ले जाऊंगा, तो मेरा मेन जीएल जो है मेरा स्टेटमेंट से मैच होना शुरू हो जाएगा। अभी 41,000 का है, सपोज मैं 10 पेमेंट कर देता हूँ वेंडर को, मेरा मेन तो नहीं हिलेगा। मैंने यहाँ पे आउटगोइंग में डाल दिया, 10 पेमेंट कर दी, तो मेरा आउटगोइंग में चेंज हो जाएगा, तो आउटगोइंग से मेरे को मतलब ही नहीं है। आउटगोइंग इज जस्ट लाइक माई एंट्री कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ वेंडर की। जब वो सारी पेमेंट स्टेटमेंट में आ जाएंगी, नाउ आई विल स्टार्ट रिकनसाइलिंग वन बाय वन। तब मेरा स्टेटमेंट में अब आपका बैलेंस मैच नहीं करेगा। स्टेटमेंट में 10 पेमेंट हो गई, सपोज 10 पेमेंट करने के बाद आपका स्टेटमेंट में बैलेंस बचा 20,000 का, और आपका यहाँ पे मेन जीएल में दिखा रहा है 41,000। तो ये 41 तब तक दिखाता रहेगा जब तक आप वो 10 पेमेंट को आउटगोइंग से यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर देंगे। जब आप उन 10 पेमेंट को यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे मेन में, तो यहाँ पे भी आपका 20,000 का हो जाएगी आउटगोइंग और मेन बैंक, और आपका जो स्टेटमेंट है वो भी 20,000 की होगी। तो आपकी बीआरएस हो जाएगी कि हाँ मेरा अंडरस्टूड। मेरा पासबुक और बैंक की स्टेटमेंट बोथ आर मैचिंग। अंडरस्टूड। सो इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस हम फॉलो नहीं करेंगे जब तक हमारा मैनुअली हम बैंक स्टेटमेंट एंड आर आउटगोइंग जी, जीएल दोनों को मैच ना करें। मेन Because जी। outgoing and incoming GLs are the control account. नहीं, हाँ। outgoing and incoming are the control accounts. So you हम्म। have to first match these two GLs with the bank statement. नहीं 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 Once, नहीं नहीं, आपको इनकमिंग और आउटगोइंग को कोई मैच नहीं करना। आपको देखना है कि मेरी स्टेटमेंट में 20,000 की पेमेंट आई है किसी को। अब मुझे चेक करना है अपने आउटगोइंग में, 20,000 की पेमेंट करी हमने, हाँ। नाउ आई नीड टू ट्रांसफर माई आउटगोइंग टू मेन, तो to my मेन main. बैंक, हाँ, टू माई मेन बैंक को आई नीड टू रिकनसाइल विद मैचिंग विद बैंक स्टेटमेंट। क्या वो प्रोसेस हम फॉलो करने वाले हैं ये जो तो किया हमने मेन follow। बैंक में नहीं सर, बैंक वही तो स्टेटमेंट के साथ जो मैच करेंगे हम। ये बैंक स्टेटमेंट नहीं तो आपकी, देखो ये 9,000 की जो मैंने रिकनसाइल की है, मेरे पास अभी कोई स्टेटमेंट तो है नहीं। मेरे पास कोई अच्छा कंपनी, हाँ, अभी समझ ये गया, तो समझ गया। टेस्टिंग सिस्टम है ना। मेरे पास कोई अकाउंट तो है नहीं इस हाँ, कंपनी का कि मैं ऑनलाइन जाके चेक कराऊं कि हाँ 9,000 की पेमेंट मेरे अकाउंट से चली गई है। देखो, आउटगोइंग और इनकमिंग का कॉन्सेप्ट है कि आपने पेमेंट करी है। देखो, आप जब अकाउंटिंग पढ़ते थे तो रूल, अब मुझे एग्जैक्टली रूल का याद नहीं, बट मैं आपको बताता हूँ। वी हैव मेड द पेमेंट बट पेमेंट इज नॉट क्रेडिट फ्रॉम द बैंक, दो ये लाइन होती थी समझ गया स्टेटमेंट। सर। अभी यस, आउटगोइंग जीएल में एंट्री डालने का मतलब है वी हैव मेड द पेमेंट बट पेमेंट इज नॉट डेबिटेड फ्रॉम आर अकाउंट। जब इट इज करेक्ट। debited from our account, then we will transfer from outgoing to main, and then my bank statement will be matching with my passbook, which is my main GL. क्लियर नाउ, अंडरस्टूड, कंप्लीटली क्लियर पहले, नाउ। सो आउटगोइंग से कि इनकमिंग से हम मेन बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर नहीं करेंगे जब तक वी हैव नॉट गॉट ए कंफर्मेशन हाँ, ऑन in the bank स्टेटमेंट, statement यस, that this payment is actually cleared हपेंड, or received in our bank हाँ statement. हाँ, राइट राइट। Once that वो जब तक नहीं होगा तब तुम ट्रांसफर नहीं करेंगे। Once example, another aspect to that, for example, I made a payment of 10,000, but this is not yet reflecting in my bank बैंक statement. स्टेटमेंट, तब हाँ, तक हम उसको मेन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। नहीं That will be नहीं करोगे, still lying in the outgoing GL as a control account, हाँ and once हाँ, that is reflecting in my bank statement, then only I'll be transferring to my main bank account, करेक्ट main करेक्ट bank करेक्ट GL. करेक्ट करेक्ट। Sir, one more अभी ये, thing. हाँ हाँ, कभी कभी क्या होता है कि आई हैव नॉट एविडेंस्ड बट आई हैव सीन दैट कि बैंक स्टेटमेंट को ऑटोमेटिकल एसएपी के अंदर हम लोग अपलोड करते हैं, हाँ एंड वंस यू अपलोड दैट देन हाँ ऑटो रिकंसिलेशन होता है फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट एंड द आउटगोइंग और इनकमिंग जीएल हाँ दैट वी मेंटेन फ्रॉम आवर सेट ऑफ द बुक्स। हाँ 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 ये होता है क्या हाँ सर? हाँ। ये प्रोसेस कैसे होता है सर? एनी आइडिया? आर वी गोइंग टू कवर दैट और इट विल बी We are not going to cover it, but this process happens. That process we call it MT940 process.
Yes, MT 940, correct. देखो मैं उसके लिए आपको हिंट दे देता हूँ, थ्योरी बता देता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि वैसे नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसके लिए हमारे पास बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मेट भी होना चाहिए। वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो आपको ये समझ आएगा अगर आपके पास ऐसा काम आया तो आपको कैसे डिस्कशन स्टार्ट करना है और क्या क्या बात करनी है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है। जैसे अभी आपने कॉन्फ़िगरेशन करी है ना बीआरएस की, वो तो कॉन्फ़िगरेशन होनी ही होनी है, वो तो उतनी होनी है। Right. उसके बाद एक स्टेप और आ जाता है। पहले मुझे ये बताइए, बैंक रिकंसिलिएशन कॉन्सेप्ट इज क्लियर सिस्टम में भी और थ्योरी में भी? ऑटोमेशन हाँ सेकंड सर। पार्ट है। क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर, लगभग तो क्लियर ही है। एक बार चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई इशू आएगा तो पूछ लेंगे। हाँ, अब मैं सेकंड आपको बताता हूँ। जो हमने सपोज हमने कहा कि यार मेरे पास दो चार एंट्री है तो मैन्युअली डाल लूंगा, पर मेरी अगर कंपनी बड़ी है और मेरे पास सपोज ये एंट्री है लाखों में है या हजारों में है, तो मैं मैन्युअली तो नहीं डाल पाऊंगा। तो आप क्या करोगे, इसी फॉर्मेट में आप एक डेवलपमेंट टीम से बात करोगे कि यार मेरे को ना अपलोड प्रोग्राम बनाना है इस BRS FS 67 ट्रांजेक्शन कोड का। तो क्या, चलो ठीक है, एक नया टी कोड बनाते हैं FFZ FF 67। नॉर्मली ऐसे ही करते हैं ज्यादातर, जी जी आगे लगाते हैं और स्टैंडर्ड वाले को कभी नहीं छेड़ते हैं। नया टी कोड बनाते हैं, वो इसको कॉपी करेगा और एक ZZ FF 67 बनाएगा, अब उसमें चेंजेस करेगा। तो उसमें क्या करेगा, आपने बताया कि ये मेरा फॉर्मेट है, ये मेरा फॉर्मेट जो है ना सेकंड स्क्रीन का है। पहली स्क्रीन आती है मेरे पास ऐसे, तो कहेगा ठीक है, अब मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बिकॉज डेवलपमेंट टीम खाली डेवलप करती है, उनको जो आप दोगे वो उसको बनाएंगे, आप बोलोगे वैसा करेंगे। अब पहली स्क्रीन की इंफॉर्मेशन आप दोगे, आप कह सकते हो कि पहली स्क्रीन पे जब आप आओ, आप इसको क्लिक करो ओवरव्यू को, फिर आपकी कंपनी कोड आप बताओगे। कंपनी कोड सपोज आप कहते हो कि मैं यहाँ पे अपना कंपनी कोड दे दूँ, कि मैंने अपना कंपनी कोड दे दिया पहले ने, या फिर मैंने लिख दिया कंपनी, कह रहा उसको डबल क्लिक करना। ये आप स्टेप बता रहे हो, जो स्टेप आप मैनुअली करो वही स्टेप आप उसको भी बताओगे। तो कहेगा ठीक है। वो कहेगा फिर यहाँ पे स्टेटमेंट आएंगी बड़ी सारी आपके पास, लास्ट वाली स्टेटमेंट पे जाना, उस पर कर्सर रखना, लास्ट वाली स्टेटमेंट जाना, उस पर कर्सर रखना, देन क्लिक ऑन न्यू स्टेटमेंट। कहेगा चलो ठीक है, मैंने इस पर भी कर दूंगा। फिर आपके पास ऐसे आ जाएगा। फिर कहेगा चलो ये सब तो आ गया, स्टेटमेंट दो भी आ गई, जो डेट आएगी वो भी ठीक है, ओपनिंग बैलेंस अपने आप क्लोजिंग से उठा लेगा। अब मैं एंडिंग बैलेंस क्या दूँ? आप कहोगे एंडिंग बैलेंस देना है, सपोज यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये मेरा माइनस है, देते हैं पीछे, देते हैं याद नहीं है, पीछे देते हैं। आप कह रहे हो क्लोजिंग बैलेंस, मतलब आप यहाँ से 7, छोटा है, थोड़ा इजी करते हो, आपको कंफ्यूज हो जाएगा। सपोज अब ये आपकी 3 लाख आइटम है, सपोज एक 8,000 पे प्लस है, एक 8,000 पे प्लस, इसको 12,000 पे प्लस कर देते हैं, इसको जी जीरो, इसको आउटगोइंग कर देते हैं, आउटगोइंग में 9,000 कर देते हैं माइनस। तो आप सब क्या हो गया, 11,000 पे प्लस होगा, मतलब 12 और 8 20 माइनस 9, 11,000। तो आप क्या कह रहे हो, जो आपका यहाँ पे बिगनिंग बैलेंस है ना, उसमें ये ऐड कर दो या माइनस कर दो। अगर आपका सपोज ये 90,000 का होता, 70,000 पे माइनस होता है, तो आप कहते हैं कि 41,000 को इसमें माइनस कर, तो आपका 29,000 पे माइनस का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए था, एग्जाम्पल के लिए। बट ये सपोज यहाँ पे 9,000 है, तो आप कह रहे हो अब मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो होगा 40,000 प्लस 11,000 52,000, तो उसको 52,000 पे ले लेना यहाँ पे, ठीक है। आपने कहा जो मेरा ओपनिंग बैलेंस है उसमें ये चीज ऐड कर लेना, ऐड करोगे तो माइनस में जाएगा या प्लस में जाएगा, 99% प्लस में ही होना चाहिए, 100% होना चाहिए। आपका हो गया 52,000 पे, तो आपको एंडिंग बैलेंस भी मिल गया, आपको एम पर आएगा, चलो ठीक है। तो उसके बाद आप उसको कहोगे 2 बार एंटर मारियो यहाँ पे, एक बार मारा ठीक है, आप मतलब आपको चेक करना है, एक बार मारा 2 बार मारा, एक बार एंटर मारा आपके स्क्रीन आ गई। वो कहेगा आपको ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, तो ये सारा डेटा उठा के इसको पेस्ट कर लेना, ये सारा वेपर बनाएगा। और उसके बाद कहना है इसको सेव करना, और फिर दोबारा दोबारा क्लिक करना सेव का मतलब पोस्ट का बटन, तब आपकी बीआरएस हो जाएगी। तो ये स्टेप आपको समझाने पड़ेंगे उसको, तब आपकी ये ऑटोमेशन हो। मैंने आपको इंग्लिश टर्म में, नॉर्मल जनरल टर्म में बताया, बट अब पर आपसे और भी चीजें पूछ सकता है।
आवाज क्लियर नहीं आ रही जो भी बोल रहा है। नहीं संतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। सर कोई मीटिंग ज्वाइन कर रहा है क्या? बाय अटेंडिंग दिस मीटिंग यू कंसेंट टू बीइंग इंक्लूडेड। एक सेकंड, नहीं मीटिंग तो कोई नहीं ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे। ये बार बार ऊपर पॉपअप आ रहा है मेरे को। नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं आ रहा, ऐसा कोई डॉपी में नहीं है। संतोष जी की देखते हैं आवाज क्लियर आ रही है। संतोष जी बोलिए आप। संतोष जी या तो आप रीज्वाइन करिए। हाँ संतोष जी, अब बोलिए। म्यूट करो आप संतोष Can you जी। can you hear me, sir? हाँ हाँ हाँ, बताइए। ओके, मैं क्या बोल रहा था, ये एक ही स्क्रीन पे हम इनकमिंग आउटगोइंग सब कुछ वहाँ पे डाल सकते हैं। हाँ हाँ, सब एक ही स्क्रीन पे डालना है, अलग अलग स्क्रीन पे नहीं डालना। अब इसके बाद आप उसको बताओगे एक बार सेव करियो फिर पोस्ट करियो, वो आपकी बीएलएस हो जाएगी। ये तो हो गया, आप ऑटोमेशन कर रहे हो, जो ट्रांजेक्शन आप मैनुअली चला रहे हो। मैंने आपको जनरल वे में बताया ऐसे आप ऑटोमेशन कराते हो, बट इस इन सब चीज़ों को जो आप बता रहे हो ना, उन सब चीज़ों का आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। उसको हम कहते हैं एफएस, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। फंक्शनल स्पेसिफिकेशन आपको बना के देना पड़ेगा अब ऐप कंसल्टेंट को, कि भैया मुझे इसकी डेवलपमेंट चाहिए। उसके लिए आपको अप्रूवल तो लेना ही पड़ेगा मैनेजमेंट से, पीएमओ से, कि मेरे को डेवलपमेंट करानी है इस चीज़ के लिए। तो वो डिसाइड करेगा कि इसकी डेवलपमेंट करानी चाहिए नहीं चाहिए। बिकॉज वो देखेगा कि कितना डॉक्यूमेंट आप पोस्ट करते हो, कितना आपके पास नंबर ऑफ लाइन आइटम्स हैं, डेवलपमेंट कराना मेरे को फिजिबल है या नहीं, मैं इतने एफर्ट खराब करूँ ना करूँ। मतलब कंपनी आपको अप्रोच करे, मतलब कंपनी और पीएमओ का डिस्कशन होगा, सीधी बात है। पीएमओ अप्रूव कर देगा तो आपके पास आ जाएगा किसी डेवलपमेंट करनी है। डेवलपमेंट करने के लिए आपको एफएस अपडेट करना पड़ेगा इसी वे में जिस वे में मैंने आपको बताया, बट थोड़ा टेक्निकल। ठीक है, क्लियर है ये ऑटोमेशन? इसको हम कहते हैं सर इसके अंदर ये भी सर इसके अंदर ये भी करा सकते हैं कि जैसे अगर हमने कोई वेंडर का इनवॉइस डाला और वो बैंक से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाए, मतलब उसके लिए बैंक के साथ बैठना पड़ेगा, मतलब जो बैंक कॉन्फ़िगरेशन करानी पड़ेगी। वो फर्दर है, फर्दर है वो, उसको हम कहते हैं होस्ट टू होस्ट प्रोसेस। कि मैं क्या यहाँ सर? पे सर दोबारा बोलो। उसको कहते हैं H2H, होस्ट टू होस्ट प्रोसेस। सर लिखना, सर एक्सेल पे लिखना ना, समझ ही नहीं आया। होस्ट टू होस्ट, ओके मेरे को होस्ट टू ऐप होस्ट सुनाई दे। क्या मतलब सर उसका? इसका इसका इस, देखो, इसका हम मतलब क्या है सर, एक बार बताइए थोड़ा मैं clarify। बता दूं, हम एक प्रोसेस करेंगे अभी, ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम, APP। इसको हम रन करते हैं F110 से। F110 से जो काम अभी हमने F-53 से किया है एक वेंडर के लिए, वो हम F110 से करेंगे मल्टीपल वेंडर्स के लिए। बट उसके बाद पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जानी चाहिए वेंडर को लिए, उसको कहते हैं होस्ट टू होस्ट प्रोसेस। इसके लिए पूरी डेवलपमेंट होती है अब ऐप के साथ, बैंक को बुलाया जाता है, बैंक के साथ डिस्कशन होता है, पूरा प्रोसेस बनाया जाता है कि मैं खाली F110 चलाऊंगा, मेरा वेपर जो है एक फाइल बनाएगा, उस फाइल को उठा के बैंक के सर्वर पे भेजेगा, बैंक का सर्वर उस फाइल को उठाएगा और पेमेंट कर देगा वेंडर्स को। उसको कहते हैं होस्ट सर टू होस्ट उस प्रोसेस। केस में सर उस केस में बैंक रिकंसिलिएशन ऑटोमेटिक होगी, नहीं उस केस में भी हमें मैनुअली करना पड़ेगा फिर? वो आपके ऊपर है, आप कितने प्रोसेस को कितना लंबा लेके जाते हो। आपने F1 किया पहले, तो यहाँ पे हाँ आपकी पेमेंट होगी वेंडर को, यहाँ पे होगी वेंडर पेमेंट। हाँ आप कह रहे हो कि ठीक होस्ट है टू होस्ट मैंने इसके आगे इम्प्लीमेंट कर दिया, जी। तो ठीक है, मैंने वेंडर की नहीं, यहाँ पे वेंडर एंट्री हुई वेंडर की एंट्री हुई ना सर यहाँ इन पे, हाँ। SAP। इसके बाद वो पेमेंट, हाँ होस्ट टू होस्ट किया आपने, तो यहाँ पे आपकी वेंडर पेमेंट हो गई, आउटगोइंग पेमेंट हो गई मेरी यहाँ पे सर। वेंडर पेमेंट हो गई। इसके बाद आप चाहते हो मेरे को बीआरएस भी करनी है, तो बैंक फाइल नहीं आपको नहीं सर, इससे भेजेगा। पहले नहीं, इससे पहले ये तो वेंडर की एंट्री जो ही, ये जो आपने वेंडर की एंट्री लिखा है, ये तो इनवॉइस बुक हुआ इसका, है ना सर? नहीं नहीं नहीं, या F110 ये का आउटगोइंग मतलब पेमेंट पेमेंट, है। आप अभी इनवॉइस पे आउटगोइंग बैठे पेमेंट। हो, आउटगोइंग पेमेंट है।
इनवॉइस नहीं तो हो मैं गया, कह रहा हूँ इनवॉइस में मेरे तो को कुछ है ही नहीं। मल्टीपल, नहीं मेरे को, मैंने ये कहा कि मेरे को मल्टीपल आउटगोइंग पेमेंट करनी है। वो F110 है तो बता तो रहा हूँ मैं आपको। अच्छा ठीक है सर। इनवॉइस तो जैसे मर्जी डालो, ऑटोमेशन करो या मैनुअली डालो, हम्म, उसके बाद F-53 करोगे तो एक वेंडर को पेमेंट कर पाओगे, F110 हाँ करोगे तो आप मल्टीपल वेंडर्स को मल्टीपल पेमेंट्स कर पाओगे। ओके, ये एसएपी के अंदर होगा, उसके बाद फिर वो मेरा बैंक को हिट करेगा अगर हमने कुछ उसके बाद डेवलपमेंट करा रखी है तो। डेवलपमेंट कराने के बाद अब आप आपका सारा फाइल डेटा उठा के जो आपने यहाँ पे करा है हाँ वो बैंक को हाँ हाँ, भेजेगा। उसको कहते हैं होस्ट टू होस्ट प्रोसेस। फिर बैंक उसकी पेमेंट करेगा, वेंडर पेमेंट। फिर उसके बैंक फाइल भेजेगा आपको कि आपने मेरे को 100 पेमेंट बोली थी करने को वेंडर की, 10 वेंडर थे या 4 वेंडर थे, उसमें से 80 पेमेंट हो गई है, 20 नहीं हुई है। और रीजन बताएगा कि या तो बैंक डिटेल गलत थी, या फिर बैंक IFSC क्लोज जो भी हो गया, होगा। IFSC क्लोज गलत था, कुछ भी रीजन था वो बताएगा। फिर आप क्या करोगे, जो मतलब 80 एंट्री जो है वो तो आपकी ठीक है, तो आपने यहाँ पे हाँ 100 डॉक्यूमेंट में 80 तो आपने हाँ, रिकनसाइल नहीं, रिकनसाइल नहीं, वेंडर लाइन आइटम पेमेंट हो क्लियर। गई। हाँ, 80 हाँ की पेमेंट होगी तो आपके 80 डॉक्यूमेंट क्लियर हो गए। 20 की जी। डॉक्यूमेंट 20 की जो आपकी पेमेंट नहीं हुई, तो आपके 20 डॉक्यूमेंट को वापस ओपन करना, पहला तो वो प्रोसेस है। हाँ फिर उसके हाँ, बाद 80 डॉक्यूमेंट जो पेमेंट हुई है उसको रिकनसाइल करना भी अलग, सेकंड वो प्रोसेस है। वो फर्दर कंप्लीट ऑटोमेशन है। सर उस केस में फिर हमें बैंक से तो कोई मतलब नहीं है ना सर? बैंक से तो तो खाली हमारे को यहीं तक ही मतलब है ना कि जहाँ पेमेंट खत्म हो गई और या कैंसिल हुई है बस। वो आपको डेटा तो वही देगा ना कि किसकी पेमेंट कर दी मैंने। नहीं नहीं, यहाँ तक तो उसने डेटा दे दिया ना मुझे कि हाँ, आपकी 80 डेटा पेमेंट डेटा दे क्लियर दिया, हो फिर गई है। बैंक का काम खत्म, फिर हमारा वेब का काम फिर हाँ शुरू हो जाता है डेवलपमेंट का। वो उस फाइल को उठा के चेक करेगा 80 कौन सी पेमेंट हुई है, उनको क्लियर, जो उनको हमने वेंडर क्लियर किए थे ठीक है वो ठीक है, जो 20 पेमेंट नहीं हुई है उनको ओपन कर देगा वापस, और जो 80 पेमेंट हुई है उनकी BRS भी करेगा। करेगा नहीं, ओके, करवानी पड़ेगी फंक्शनल करवानी कंसल्टेंट पड़ेगी। को। हाँ एफएस फंक्शनल एफएस के थ्रू कंसल्टेंट जाएगी जो आप बोल रहे हो। FS के थ्रू टेक्निकल सारा आप लोग लिखोगे, और एडेपर उस हाँ पर काम करके वो पूरा प्रोसेस बनाएगा। ठीक। तो अब अभी सर हम एक क्या कह रहे थे। हैं। एक पॉइंट यहाँ पे है, जो 80 ट्रांजेक्शन जो सक्सेसफुली पेमेंट हो गया है, ये हम्म, 80 को अगर हमारा आउटगोइंग जीएल से ऑटोमेटिकली कंपेयर करना है, मतलब मैचिंग करना है, तो ये MT940 के थ्रू हम कर सकते हैं ऑटो मैचिंग। अब पहले आप डिसाइड करो कि आप होस्ट टू होस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देखो मैं तभी कह रहा हूँ, ज्यादा कंफ्यूजन में आप लोग चले जाते हो कई बार। आप कहीं मत जाओ कंफ्यूजन में, आपको स्टेप बाय स्टेप ही बताता हूँ मैं आपको। आपने यहाँ पे पहले ये मैनुअली अपलोड प्रोग्राम आपको समझ आ गया, एफ एफ जी सिक्सटी सर। हाँ जी। सेवन जो ट्रांजेक्शन कोड है। अब आते हैं जो MT940 का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी आप क्या करते हो जब मैनुअली करते हो, तो बैंक बैंक में नेट बैंकिंग में ऑनलाइन जाके चेक कर रहे हो कि किसकी पेमेंट हो गई। ये आपके डे एंड पे एक PDF आता है बैंक से कि ये आपकी स्टेटमेंट है आज की। तो आप मैनुअली चेक करते हो किसकी पेमेंट होगी, तो आपने FF67 से करा। अगर आप कह रहे हो यार मेरे को बैंक से ना डे एंड पे या वीक एंड पे ना एक फाइल आती है, मेल पे आए या वो मेरे सर्वर पे सेव करे। समझ लो मेल पे आई, आपने उस मेल को फाइल उठाई, उसका फॉर्मेट होता है TXT फॉर्मेट होता है शायद, वो अभी चेक कर लेते हैं। उसको आपने एक फोल्डर में सेव कर लिया, ठीक है। अब ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ना, ये वाली देखो, ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगली कॉन्फ़िगरेशन होती है इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट। जी। इसमें एक ही कॉन्फ़िगरेशन का स्टेप होता है, मतलब यही होता है शायद, बस बहुत टाइम हो गया यूज़ किए हुए। स्प्रिंग, एक सेकंड देखते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स, हाँ ये वाला स्टेप होता है। देखो पहले जो सारे स्टेप है ना, सारे वही स्टेप है जो आपको यहाँ पर थे मैनुअल वाले ऊपर में। वाला। ये देखो ये तीनों स्टेप देखो, और इनके अंदर जो 4 स्टेप थे वो सारे वही हैं वहाँ पे, ये देखो। तो इलेक्ट्रॉनिक इसमें जाओगे ना, सारे स्टेप आपको करने हैं, आपके यहाँ पे हुए पड़े हैं क्योंकि आपने पीछे वाले में कर दिए। ये देखो सारे हुए पड़े हैं, खाली बराबर। ये लास्ट स्टेप होता है जो हम करते हैं, ट्रांजेक्शन टाइप। कौन सा, MT940, ठीक है। इसके अंदर आओ, ये जो है ना एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, ये बैंक वाइज होता है। बैंक कहता है जब मैं ये नंबर दूंगा ना NCHG, इसका मतलब माइनस है, और मेरा कौन सा पोस्टिंग रूल होगा वो आप डिसाइड करोगे। अगर मैंने NTRF दी है तो प्लस है, मतलब कुछ प्लस होगा। उसके लिए कौन सा रूल चलाना है आपको, ये चलाना है। बैंक चार्जेस का भी हो सकता है, इंटरेस्ट का भी हो सकता है, इनकमिंग आउटगोइंग कोई भी हो सकता है।
तो ये फर्दर एक कॉन्फ़िगरेशन होती है और एक यहाँ पे ये जो ये पोस्टिंग यहाँ पे पोस्टिंग रोल जो है हाँ ये बताइएगा, ये कि हमें वी हैव टू डिजाइन लाइक वी डिड इन द मैनुअल वही है जो हमने किया था वही है ये। आपको डिसाइड ओके करना है कि मेरे को कौन सा यहाँ पे एंटर करना है, ओके ओके क्योंकि ओके ये बैंक का नंबर है कोई। जब आपको बैंक में गूगल में दिखाता हूँ, बैंक जो फाइल देता है ना MT940, तो कैसे देता है वो समझना खाली इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा और कुछ ये पर एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है MT940। और कहीं पे डिफरेंट फॉर्मेट देते हैं, जैसे बाई फॉर्मेट भी होता है, वो अलग अलग कंट्री में होता है, प्रोसेस सेम है। ठीक है, इंडिया बाई फॉर्मेट। ये CSV फॉर्मेट है। हाँ मतलब जो भी फॉर्मेट है उसमें इतना कोई वो नहीं है, देखो 4 डिजिट का होता है। अगर मैं इसको देखूँ, डाउनलोड वगैरह ऑप्शन नहीं है, कोई नहीं, वैसे देख जाएगा भाई। ऐसे एक ना TXT फॉर्मेट होगा या फिर DXT फाइल होगी, होगा उसके अंदर ऐसी डिटेल होगी। सबसे पहले उसके आगे ना कुछ लिखा होगा, ये नंबर। इन नंबर का मतलब है 20 का मतलब है ये मेरा रेफरेंस नंबर डिनोट करता है। 25 का मतलब है अकाउंट आइडेंटिफिकेशन। 28C का मतलब है स्टेटमेंट नंबर, हमने वहाँ पे स्टेटमेंट नंबर दिया था 1 2। 60F का मतलब है मेरा ओपनिंग बैलेंस। 61 का मतलब स्टेटमेंट लाइन, तो ये आपको समझना है। 62 का मतलब क्लोजिंग बैलेंस। 64 का मतलब क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल। तो ये आपको बैंक के साथ बैठ के समझना पड़ेगा एक बार। और आपको इस फॉर्मेट को, क्योंकि बैंक आपको ये भी बताएगा मेरे बैंक में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन चलती है, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन ये वाली। इसका मतलब बैंक बताएगा सपोज प्लस का है, मतलब कुछ आया है। किससे आया है? वेंडर से, ओ कस्टमर से आया है। तो हम यहाँ पे इनकमिंग वाला डालेंगे। अगर वो कहते हैं ये वाला जो है ये भी इनकमिंग है बट ये इंटरेस्ट के लिए है, तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट वाला पोस्टिंग में डालो। बस इतना ही स्टेप एक्स्ट्रा है और आपको ये फॉर्मेट समझना है। देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 20 का मतलब रेफरेंस, ये मैंडेटरी है। फॉर्मेट कुछ भी ऐसे हो सकता है। स्टेटमेंट नंबर, फॉर्मेट, ये जो 22 है ये अकाउंट नंबर है। और 35X पूछना पड़ेगा बैंक से। मेरे ख्याल से 35 कैरेक्टर अवेलेबल होंगे, इससे ज़्यादा करोगे तो एरर आ जाएगा। अकाउंट नेम, ये भी 35 का है। यहाँ पे 60F के अंदर जो है ओपनिंग बैलेंस आएगा। मतलब ये आपको ये समझना पड़ेगा और ये बैंक के साथ बैठ के समझ आ जाएगा, नहीं तो इतना भी कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है। एंड ये बट नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन के हिसाब में ये ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा इधर इनकमिंग और आउटगोइंग हाँ एंड एज हाँ पर हाँ, द डिस्क्रिप्शन आल्सो। क्योंकि यहाँ पे वो देगा ना यहाँ पे कि मैं किस टाइप की ट्रांजेक्शन भेज रहा हूँ। NCHS, ठीक है। NCHS के मैंने क्या कहा है, मैंने ये पोस्टिंग रूल दिया है। इस पोस्टिंग रूल के अंदर क्या है मेरा, देखते हैं। G300 ये बैंक चार्जेस एंड क्रेडिट मेन बैंक। तो ये है कि माइनस हो रहा है, बैंक चार्जेस की एंट्री होगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मेन बैंक। तो ये है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ये जब ये आएगा स्टेटमेंट में, तो मेरा बैंक अपने आप समझ, और SAP अपने आप समझ जाएगा कि मेरे को क्या एंट्री करनी है। GL आपके ऊपर है ही है यहाँ पे, असाइन अकाउंट टू अकाउंट सिंबल, ये आपके ऑटोमेटिक नहीं है। बैंक चार्जेस का ये वाला GL उठाएगा, क्योंकि ये अकाउंट सिंबल है। ये अकाउंट सिंबल से आपने यहाँ पे लिंक कर रखी है सारी चीजें, सब कुछ लिंकिंग है। लास्ट स्टेप आपका यही है बस। यहाँ पे हम बताना है कौन सा फॉर्म है MT940, इसके अंदर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है मेरे बैंक के लिए। उसके बाद ये वाला स्टेप है, इसमें आपको बताना है कि ये जो मेरा बैंक की है, जो मेरा बैंक है उसका अकाउंट क्या है और कौन सा मैं फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ। बस, और कुछ नहीं है। ये 2 स्टेप ही होते हैं। बट इसके लिए आप, उसके बाद आप ट्रांजेक्शन कोड FF67 नहीं चलाते हो। इसके बाद आता है ट्रांजेक्शन कोड FF_5। ये वो ट्रांजेक्शन कोड चलाते हैं जिसमें हम स्विफ्ट, मल्टी कैश, बाई, MT9 फॉर्मेट किसी को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सर ये एक बार क्लियर। दोबारा खोलना सर, एक बार दोबारा खोलना ये वाला। सिक्योरिटी तो चलाया है, यही पड़ेगा। अच्छा नहीं, मैंने वो कोड नहीं लिखा था, किस कोड से खोला था उसने? FF_5। F_5 ओके। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है MT940 ऑटोमेशन विद बैंक स्टेटमेंट। देखो पहला स्टेप होता है मैनुअली FF67, सेकंड स्टेप होता है MT940, तीसरा स्टेप होता है होस्ट टू। मतलब इजी वाला सबसे पहले मैनुअली होता है। अगर मुझे थोड़ी कंपनी बड़ी है, वो कहती है MT940 है, मुझे ऑटोमेटिक करना है,
कि बैंक से जो स्टेटमेंट है ऑटोमेटिक रिकनसाइल हो जाए, तो होता है MT-140। तीसरा स्टेप होता है आप कहते हो कि पेमेंट भी मेरे से, मैं खाली पेमेंट यहाँ से करूँ, बैंक अपने आप पेमेंट कर दे और मुझे फिर वापस भेजे फाइल, मैं अपने जो भी मेरे 20 आइटम नहीं क्लियर हुई उनको ओपन कर दूं वापस इनवॉइस को और 80 को रिकनसाइल कर दूं। वो होता है होस्ट टू होस्ट। ये होता है कंप्लीट BRS SAT। तीन तीन तरीके से कह सकते हो आप, होता है मैनुअली और ऑटोमेशन। सर Okay. होस्ट मैनुअल होस्ट का कंसेप्ट दोबारा थोड़ा सा एक बार थोड़ा स्लाइटली रिपीट कर दें। एक देखो, अभी आपने F-53 किया, जिसमें आपने एक ही पेमेंट करी। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को एक पेमेंट नहीं करनी, मेरे पास मेरे 1 लाख वेंडर हैं, मेरे को सबकी पेमेंट करनी है एक साथ, तो उसके लिए ट्रांजेक्शन कोड है F110। ठीक है। जब मैं इसको पे करूंगा, जब मैं इस ट्रांजेक्शन कोड यूज करूंगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली F-53 वाली पोस्टिंग कर देगा, मतलब मेरी इनवॉइस को क्लियर कर देगा और मेरे वेंडर की पेमेंट सिस्टम में डाल देगा। अगर खाली आप F110 करते हो, मेरी वेंडर अच्छा, अब बोले कि अगर F110 हम करें ऑटोमेटिकली मल्टीपल वेंडर का एक ही टाइम पे पेमेंट हो जाएगा। हाँ, सिस्टम में एंट्री हो जाएगी, ओके, पेमेंट मत करो, अब एंट्री होगी। एंट्री, जब हाँ तक आप एंट्री हो जाएगा। शुरू के कोर्स में थे हम, तब हम समझ पा रहे थे कि पेमेंट करनी है, सिस्टम में पेमेंट एंट्री हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब आप इसके आगे फर्दर होस्ट टू होस्ट इम्प्लीमेंट करते हो, तो आप कह रहे हो जो मैंने वेंडर की पेमेंट करी है 1 लाख वेंडर की, या समझ लो 500 वेंडर्स की, तो आप कह रहे हो 500 वेंडर में मेरे सपोज 2000 इन्वॉइसेस हैं, मैं 2000 इन्वॉइसेस की डिटेल जो है ना बैंक को भेज दूँ। सर वो बैंक को, फॉर्मेट भी वो बैंक वाला हमें देगा कि इस फॉर्मेट में मुझे चाहिए आपसे डेटा। हाँ, वो आपको हर बैंक से डिस्कशन करना पड़ेगा कि वो कह रहा है कि ICICI वाला कह रहा है कि यार इस फॉर्मेट में चाहिए, HDFC अच्छा, वाला कह हम रहा है इस वो फॉर्मेट में चाहिए। बैंक वाला मांगेगा, फिर हमें भी उससे डेटा जो चाहिए होगा इस फॉर्मेट में हम देंगे उसको। हम जो कि फॉर्मेट वो हमें ऐसे देगा ना, देखिए मैं सर। हमें वो हाँ, डिजाइन बनाना पड़ेगा कि उस फॉर्मेट में मैं एक अच्छा, फॉर्मेट एक्सेल में बना लूं और उसी फॉर्मेट में मैं डेटा जो 500 वेंडर का दे रहा हूँ, 2000 लाइन आइटम दे रहा हूँ मैं इनवॉइस की, उस फॉर्मेट में दूंगा बैंक को, क्योंकि बैंक उसी फॉर्मेट से पेमेंट कर देगा 500 वेंडर को। ठीक। फिर पेमेंट करने के बाद वो बताएगा कि इन 500 वेंडर की 2000 लाइन आइटम में से सपोज 1600 लाइन आइटम पेमेंट हो गई है, या फिर आप समझो 400 वेंडर की पेमेंट हो गई है, 100 वेंडर की नहीं हुई। रीजन हो सकता है कि अकाउंट क्लोज हो गया, या IFSC कोड आपने जो दिया गलत दिया, सपोज आपने सिस्टम में गलत डाल रखा है, 0 की जगह O डाल रखा है, तो आपने गलत भेजा होगा, तो वो कहेगा ये गलत है वो गलत है, वो डिटेल सारी बता देगा। तो 400 की पेमेंट हो गई, तो 400 वेंडर के जो भी इन्वॉइसेज है ना, वो आप क्लियर रखोगे आपने, क्योंकि F110 किया तो पेमेंट इन्वॉइस का क्लियर हो गई। अब जो 100 वेंडर की सपोज 200 पेमेंट इन्वॉइसेस थे, आप उनको ओपन कर दोगे। आपको अगर मैनुअली ओपन करूंगा तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो आप जी। जब बैंक फाइल भेजेगा ना, तो आप 100 वेंडर के 200 डॉक्यूमेंट जो हैं उनको भी ऑटोमेशन चलाओगे कि ये वाले डॉक्यूमेंट को पिक करो और रिवर्स कर दो मेरे पेमेंट ओके। होगी। तो आपकी पेमेंट फिर रिवर्स हो जाएगी। 400 वेंडर की जो पेमेंट है 1600 डॉक्यूमेंट की, वो आपकी क्लियर हो गई है। आप कह रहे हो मुझे BRS करनी, तो बैंक ने आपको फाइल दी है कि ये 1600 डॉक्यूमेंट तो क्लियर हो गए, तो क्लियर हो गए तो आपको पता है कि बैंक स्टेटमेंट में बैंक ने कंफर्म कर दिया तो ये क्लियर है। आप उसको इनकमिंग, मतलब आप आउटगोइंग ही है, तो आप उसको BRS करने जाओगे एफ के F-5 से, जो भी आप बैंक ने फॉर्मेट दिया उसको उसको BRS करने जाओगे, और जो भी आइटम आपकी है आउटगोइंग से उठा के उसको मेल में ट्रांसफर कर देंगे। ये होता है कंप्लीट ऑटोमेशन फॉर आउटगोइंग पेमेंट विद BRS। ओके। इतना कंफ्यूजन में अभी मत जाओ। नहीं वो बस सही, हाँ सर। लेकिन इसको होस्ट ठीक है। होस्ट क्यों बोलते हैं हम, उसका नाम दिया लॉजिक क्या हुआ है, है? नाम दिया हुआ, मैंने भी कभी पूछा नहीं, ऐसा कुछ R&D भी नहीं करी कि होस्ट टू होस्ट क्यों बोलते हैं, बट होस्ट टू होस्ट ही बोलते हैं। ओके, ओके। जैसे एक ओके। प्रोसेस है, बिलर डायरेक्टर के प्रोसेस है SAP में। वो क्या होता है कि मैं, जैसे हम बिजली का बिल पे करते हैं, तो उसको जी। बिलर डायरेक्ट के थ्रू हम इंटीग्रेट करते हैं कि जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ मेरे SAP में अपने आप चली जाए एंट्री, इनकम की एंट्री अपने आप हो जाए। जैसे भी अपने कस्टमर की एंट्री करोगे, कस्टमर अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, वो ऑटोमेटिक हो जाए बिलर डायरेक्ट के थ्रू, उसको हम कहते हैं बिलर डायरेक्ट। तो बिलर डायरेक्ट ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत लॉजिक लग रहा है कि बिलिंग डायरेक्ट, डायरेक्ट बिलिंग, डायरेक्ट मेरी पेमेंट जो आ रही है उसको ऑटोमेटिक मैं एंट्री कर रहा हूँ। तो अलग अलग प्रोसेस के नाम है,
कई नामों के लॉजिक हो सकते हैं, मैं आपको ना बताऊं, बट इसका होस्ट टू होस्ट ही है। आज आप कह रहे हो तो उसको गूगल ही कर लेते हैं, वाई होस्ट टू होस्ट। Also, this is the back communication led to system versus different application. पता नहीं, मतलब अभी ये होस्ट के नेम से भी देख रहा है, ढूंढना पड़ेगा या फिर एसएपी का कुछ दिया होगा तो पता चलेगा। ठीक है।